Let's start with the next sentence. That is, sentence start with let's, or we can say let us. The sentence or RS that start with let's or let us, we have to change into indirect speech. So first thing is that let me discuss the RV related change of this particular sentence, the sentence that start with let's and let us. So said would change into suggested or proposed. Okay बच्चों, if in RV of direct speech there is said as a verb, then while converting into indirect speech you have to write suggested or proposed. 1 out of 2 आप कोई भी यूज करें, या तो suggested लिखिए said की जगह, या फिर proposed आप यूज करें. Next thing, if the verb is like said to plus object, okay, जब to आएगा तो object जरूर आएगा. तो if the verb is like said to plus object, then it would change into suggested and suggested to or proposed to. 1 out of 2. Okay, suggested या proposed to में से कोई भी एक आपको राइट करना है. तो what is the difference? If said includes object with it, then you have to write suggested to in place of said to, and and proposed to also. Suggested या proposed to में से कोई एक. If verb is said in the sentence or verb in direct speech, so while converting into indirect speech you have to write suggested or proposed in place of said. Is that clear? Okay, so the next thing, conjunction. Next thing is conjunction. In let's or let us sentence we have to use that as a conjunction in the sentences. ठीक है, conjunction के रूप में हम क्या यूज करेंगे? That यूज करेंगे. Next thing, one note you have to mention, you have to mind it. ध्यान रखना आपको इसका. What is that? While converting into indirect speech, let's or let us, ध्यान दीजिएगा, let or let us removed. let और let us को क्या कर दिया जाता है बेटा? रिमूव कर दिया जाता है. एंड we should or they should used. Which one? We should or they should. या तो आप we should लिखेंगे या आप they should राइट करेंगे. Used in place of let's or let us. ठीक है बच्चों, क्या समझे? ध्यान दीजिएगा. लेट मी एक्सप्लेन इट. व्हाइल कन्वर्टिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ओके, इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते टाइम लेट्स और लेट अस रिमूव्ड. जो सेंटेंस लेट्स और लेट अस से शुरू होंगे उनमें क्या करना है? इनडायरेक्ट बनाते टाइम लेट्स और लेट अस को रिमूव करना है. एंड वी शुड और दे शुड यूज्ड. ठीक है, वी शुड और दे शुड यूज इन प्लेस ऑफ लेट्स और लेट अस. ठीक है, इनकी जगह पे लेट और लेट अस की जगह पे हमें वी शुड और दे शुड राइट करना है. इज दैट क्लियर? ओके, लेट मी गिव एन एग्जांपल. For example बच्चों, if I write Ram said let's play hockey. Let's play hockey. So change into indirect speech. So the answer would be
like first of all we have to know about the RS, that is the sentence starting with let us. बच्चों let us से शुरू हो रहा है. Our rules are applied. So Ram would be Ram because the subject of Ram, subject of RV, subject of RV would be remain unchanged. Said would be changed. Said would be changed into suggested और proposed. दोनों में से आप कोई भी यूज करें, दोनों राइट है बच्चों. ठीक है, राम सजेस्टेड. ओके, राम सजेस्टेड. फिर देखिए आरवी और आरएस को कंजंक्ट करने के लिए कंजंक्शन का यूज करते हैं, और लेटेस्ट वाले सेंटेंस में कंजंक्शन क्या यूज करते हैं? दैट. राम सजेस्टेड दैट. अब क्या करना था बेटा, मैंने रूल नोट राइट करवाया था. लेट्स और लेटस को रिमूव कर दिया जाता है और इनकी जगह पे वी शुड और दे शुड यूज किया जाता है. तो हम यहां यूज करते हैं वी शुड. ठीक है, दे शुड यूज करेंगे तो भी कोई रॉन्ग नहीं होगा. वी शुड प्ले, नो चेंज एट ऑल. प्ले में कोई चेंज नहीं होगा. वर्ब है, वर्ब रिलेटेड में कोई चेंज नहीं करनी है. होकी, इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा. तो द सेंटेंस वुड बी लाइक दिस. इफ आई राइट, लुक एट द नेक्स्ट एग्जांपल. ही said to me, let us go for walk. Let us go for walk. देखिए बच्चों, सेंटेंस स्टार्टिंग विद let us, then let me write the answer. He would be he here, क्योंकि सब्जेक्ट है. said to would be changed into proposed to, या सिंपल सा आप ध्यान रखिए, said के साथ यदि to आ रहा है तो proposed के साथ और suggested के साथ आपको to करना है. said के साथ यदि to नहीं आ रहा है तो आपको उनके साथ to नहीं लगाना. ठीक है, तो इसके साथ to आया है said के बाद, तो आप यहां करेंगे, सपोज मैं इसमें राइट कर देता हूं proposed to. ठीक है, proposed to, then object would be remain unchanged. He proposed to me, कंजंक्शन क्या होगा बच्चों? that. कंजंक्शन क्या आ जाएगा? that आएगा. ठीक है, let us को क्या करेंगे? चेंज करेंगे, रिमूव करेंगे यहां से. यूज क्या करना है? वी शुड और दे शुड. अब आपके लिए कंफ्यूजन मैं दूर कर देता हूं ये कि सर हम वी शुड यूज करें, दे शुड यूज करें, इसकी कोई कंडीशन, कोई ट्रिक ऐसा कुछ है? तो बच्चों एक बात ध्यान रखना, इफ इन ऑब्जेक्ट देयर इज फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्टिव केस, यदि आरबी के ऑब्जेक्ट में फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्टिव केस आता है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन से होते हैं बच्चों? आई एंड वी. तो आई एंड वी के ऑब्जेक्टिव केस कौन होंगे? आई का ऑब्जेक्ट मी, वी का ऑब्जेक्ट अस. तो फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्टिव केस मींस टू से मी और अस यदि आपको आरवी में एज ए ऑब्जेक्ट मिलता है, सो यू हैव टू राइट वी शुड ओनली. आप वहां पे सिर्फ क्या यूज करें? वी शुड यूज करें. यदि सेकंड और थर्ड पर्सन में से कुछ आ रहा है, दे शुड आप यूज कर सकते हैं, वहां आप दे शुड यूज करें. इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं बेटा, तो आप यार दे शुड करेंगे तो भी रॉन्ग नहीं होगा. क्लियर? वी शुड. अब फिर नेक्स्ट आ जाएगा गो फॉर वॉक. We should go for walk. Is that clear? यहां तक क्लियर है? तो ये सेंटेंस इस प्रकार से आपको स्ट्रक्चर करने हैं, बनाने हैं. क्लियर हुआ? तो इस हिसाब से जो आपका लेटर से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस हैं वो कंप्लीट होते हैं. अब जो है नेक्स्ट हम शुरू करते हैं द सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. ओके, सेंटेंस शुरू करेंगे. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को किस प्रकार से हमें चेंज करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलना है, वो हम देखेंगे. देखो बच्चों, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. First of all, the basic thing is that what is an exclamatory sentence? The sentence that expresses sudden feeling of joy, sorrow, surprise, etc. is known as exclamatory sentence. Clear है? तो ऐसे sentences जो क्या करें, हमें joy, fear, sorrow, surprise का expression देते हैं, भाव देते हैं, mean देते हैं, sense देते हैं, is known as exclamatory sentence. Okay? So first thing is that सबसे पहले हमें इसके बेसिक के बारे में जानना है, उसके बाद फिर हम इसकी जो इनडायरेक्ट रिलेटेड जो चेंज है वो देखेंगे. सबसे पहले बच्चों, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं. ठीक है, कुछ इंटरजेक्शंस होते हैं. वी कैन से इंटरजेक्शंस. कुछ क्या होता है? इंटरजेक्शंस होते हैं. ठीक है, फिर मैं एक टैबुलर फॉर्म आपके लिए क्रिएट कर देता हूं. इट वुड बी मोर इजी फॉर यू. इंटरजेक्शंस होते हैं बच्चों. फिर हम बात करेंगे आरबी की बात करेंगे. ठीक है, और फिर इनडायरेक्ट स्पीच में. ठीक है,
फिर इनडायरेक्ट स्पीच में जो चेंजेस होंगे हम उसकी बात करेंगे। ये रहा इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखो बच्चों, इंटरजेक्शंस लाइक इफ आई टॉक अबाउट हुर्रा, हुर्रा बेटा क्या होता है, आपके जॉय को एक्सप्रेस करता है सॉरी, जॉय इंटरजेक्शन के लिए हुर्रा जो है इंटरजेक्शन वो जॉय के लिए आता है, ठीक है। तो ये सेंस किसका देगा, जॉय का। किसके लिए आता है ये बेटा, जॉय, ठीक है। तो जब जॉय के लिए आएगा और आपको ये कहां मिलेंगे इंटरजेक्शंस, आरएस में, ये इंटरजेक्शन आपको मिलेंगे आरएस में मिलेंगे, ठीक है। तो यदि आपको इंटरजेक्शन हुर्रा मिल रहा है सेंटेंस में और आरबी में क्या आ रहा है बेटा, सैड और सैड टू, आरबी में आपको क्या मिल रहा है, सैड और सैड टू मिल रहा है, इन दैट केस इनडायरेक्ट स्पीच में आपको किसमें चेंज करना है वो आप देखिए, ठीक है। तो यदि सैड और सैड टू आपको आरबी में मिलता है, इंटरजेक्शन आपको हुर्रा दिया हुआ है बेटा, तो आप यहां पे करेंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय, क्लियर। एक्सक्लेम विद जॉय आपको कहां लिखना है, इनडायरेक्ट स्पीच, सैड और सैड टू को एक्सक्लेम विद जॉय लिखना है व्हेन इंटरजेक्शन हुर्रा इज गिवन, जब इंटरजेक्शन क्या दी हुई हो बेटा, हुर्रा दी हुई हो, तो आपको इसको एक्सक्लेम विद जॉय में चेंज करना है। नेक्स्ट इफ आई राइट, इफ यू फाइंड अलास इन आरएस, यदि आप अलास इंटरजेक्शन आपको मिलता है तो इसका मतलब होता है बेटा सोरो। अलास इंटरजेक्शन है वो किसके लिए यूज किया जाएगा, सोरो के लिए यूज किया जाता है। तो और यदि आपको इसमें सैड और सैड टू मिलता है आरबी में आपको क्या मिले, सैड और सैड टू मिलता है, इन दैट केस आपको क्या लिखना है बेटा, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते टाइम एक्सक्लेम्ड विद सोरो, क्लियर। क्योंकि सोरो को शो करेगा तो एक्सक्लेम विद सोरो हो जाएगा, ओके बच्चा। फिर देखिए वाव जो है ये सरप्राइज को शो करता है बेटा, ये इंटरजेक्शन सरप्राइज के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। यदि आरबी में सैड और सैड टू आ रहा है तो आप इसको चेंज करेंगे एक्सक्लेम विद सरप्राइज। नॉट ए टिपिकल टास्क बेटा, सो सिंपल, जस्ट हैव द इंटरजेक्शन इन योर माइंड, द मीनिंग ऑफ द इंटरजेक्शंस एंड जस्ट ऐड एक्सक्लेम विद, ठीक है। नेक्स्ट थिंग देखिए बेटा, व्हाट अ, और आई कैन से हाउ अ या हाउ। यदि इन दोनों के बाद बेटा आपको ये भी सरप्राइज के लिए यूज किए जाएंगे, दोनों किसके लिए यूज किए जाते हैं, सरप्राइज के लिए, अमेजमेंट के लिए यूज किए जाते हैं दोनों, व्हाट और हाउ, ठीक है। आपको सैड और सैड टू मिलता है इन दोनों केस में भी, तो इनका भी क्या हो जाएगा बेटा, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते टाइम सैड और सैड टू की जगह आपको एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज लिखना है, ओके, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, ओके बच्चों। नेक्स्ट थिंग देखिए, इफ यू फाइंड ब्रेवो, यदि आपको ब्रेवो मिलता है बेटा, तो ब्रेवो किसके लिए होता है, एप्लोजन के लिए होता है, एप्लोडेड के लिए, ठीक है। एप्लोडेड का मतलब शाबाशी देने के लिए, ब्रेवो जो है वो शाबाशी देने के केस में आता है। और यदि आपको आरबी में सैड और सैड टू मिलता है बेटा, तो ये चेंज होगा एप्लोडेड विद सेइंग, ठीक है। आपको इसमें ये चेंज करना है, एप्लोडेड विद सेइंग में आपको ये चेंज करना है जब ब्रेवो आपके पास आता है। उसके बाद बेटा उफ, अरे, ओ, ठीक है, इन सब के इंटरजेक्शंस भी होते हैं, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी ओ जब आता है तो आपको क्या करना है, सोरो करना है, ओ माय पेट हैड लॉस्ट, ठीक है, ओ माय गॉड, इस केस में भी एक्सक्लेम विद सोरो आएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से ये जो कुछ इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको राइट करवाए हैं। बाकी जैसे हम एग्जाम्पल सोल्व करेंगे उस टाइम उन सबको हम डिस्कस करते जाएंगे यदि कोई अलग से आता है तो, ठीक है बेटा। तो इस प्रकार से ये एक टेबुलर फॉर्म हो गई, ये आपको याद करनी है, ठीक है। इन इंटरजेक्शन से आपको काफी हेल्प मिलेगी क्योंकि ये होंगे तो इनके मीनिंग अकॉर्डिंग हमें आरबी आरएस में चेंज करना है, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा इसमें, अब हम जब नेक्स्ट देखेंगे तो हम बात करेंगे कंजंक्शन की। ये आरबी रिलेटेड चेंज कौन सा हो गया, ये वाला। अपने को ध्यान क्या रखना है, ध्यान तो तीनों रखने हैं, लेकिन ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन आरबी रिलेटेड चेंज हो गया कि आपको आरबी में साइड और साइड टू मिले और इंटरजेक्शन यदि हुर्रा है तो आपको इनडायरेक्ट स्पीच में एक्सक्लेम्ड विद जॉय लिखना है। सेम थिंग विद अलास,
सैड और सैड टू मिले तो एक्सक्लेम विद सोरो लिखना है, एंड बाय दिस वे एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू। क्लियर? ओके। अलास का मैंने क्या बताया आपने? सोरो, अलास इज यूज फॉर सोरो। सोरो दुख के लिए होता है बेटा, है ना? सोरो, अलास इज यूज फॉर सोरो। ओके, सो लेट्स मी मूव टू द कंजंक्शन। अब हम कंजंक्शन की बात कर लेते हैं, ठीक है? कंजंक्शन की जब हम बात करते हैं बेटा, कंजंक्शन दैट यूज्ड, कंजंक्शन क्या यूज किया जाएगा इन सेंटेंसेस में? दैट यूज किया जाएगा। कंजंक्शन क्या यूज करेंगे? दैट यूज करेंगे, ठीक है? अब देखिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल से पहले एक नोट देखते हैं, ठीक है? नोट देखो बेटा, इफ in RS reported speech, if in RS interjection like what or how is given, what or how is given, in that case while converting into indirect speech, what or how removed and replaced by very or great, समझो बेटा क्या होगा? द रूल इज दैट यदि आर्मी में यदि आरएस में इंटरजेक्शंस, अभी मैंने इंटरजेक्शन आपको बताए थे, ठीक है, कि यदि आरएस में इंटरजेक्शन व्हाट और हाउ दिया हुआ हो, ठीक है, इंटरजेक्शन व्हाट और हाउ दिया हुआ हो, तो क्या करना है? इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते टाइम, ठीक है, क्या इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते टाइम व्हाट और हाउ को रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है, व्हाट और हाउ को रिमूव कर दिया जाता है और उनकी जगह पे वेरी और ग्रेट यूज किया जाता है, और उनकी जगह पे वेरी और ग्रेट हम क्या करेंगे? यूज कर देंगे व्हाट और हाउ को हटाने के बाद, ठीक है? तो देखो व्हाट और हाउ की जगह वेरी और ग्रेट करेंगे। इसका एक रूल ध्यान रखना बेटा, वेरी जो है, वेरी जब हम व्हाट और हाउ की जगह यूज करेंगे, वो तो हम यूज करेंगे नॉन लिविंग थिंग के लिए। किन के लिए बेटा? नॉन लिविंग थिंग के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर, व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर, तो व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर जो है वो नॉन लिविंग है, तो अब व्हाट को जब हटाएंगे तो वहां पे वेरी आएगा, ठीक है? व्हाट को हटाने के बाद क्या आ जाएगा? वेरी आ जाएगा, ठीक है? और यदि जैसे हम ग्रेट की बात करें, ग्रेट कब आएगा? हाउ फुल यू आर, ठीक है? इफ द सेंटेंस इज हाउ फुल यू आर, तो जब हम हाउ को हटाएंगे वहां से, हाउ को जब वहां से हम रिमूव करेंगे तो वहां पे आ जाएगा ग्रेट, ठीक है? हाउ फुल यू आर ए ग्रेट फूल, वहां पे यू आर वेरी फुल नहीं आएगा बेटा, ठीक है? सपोज करो वहां पे आएगा यू आर ए ग्रेट फूल, ठीक है? वहां पे ग्रेट फूल आएगा, यू आर वेरी फूल नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल लेट मी राइट इट हियर, यहां मुझे एग्जाम्पल लिख रहा हूं। He said to me, how fool you are। देखो बेटा एक बात और है बेसिक, वो ये है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम पहचाने कैसे, ठीक है? हाउ के बाद यदि हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो वो इंटरोगेटिव हो जाएगा, ठीक है? हाउ और व्हाट के बाद यदि इंटरोगेटिव आ रही है तो वो क्या हो जाएगा? इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। बट यदि एडजेक्टिव या कोई नाउन आता है तो वो फिर क्या होगा? वो इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं होगा, ठीक है? वो इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं होगा। देखो
तो ही सेड टू मी हाउ फुल यू आर, इसको चेंज करते हैं बेटा, हाउ से शुरू हो रहा है, देखिए फुल हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही, नाउन एडजेक्टिव आ रहा है, इसका मतलब एक्सक्लेमेटरी है, लास्ट में आपको साइन दिख ही गया है एक्सक्लेमेटरी साइन का, ठीक है, मींस टू से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, लेट मी चेंज इट, ही सेम रहेगा बेटा, सेम रूल अप्लाइड, सेड टू की जगह क्या आएगा बेटा, हाउ आ गया, तो आप पीछे देखें हाउ को मैंने किस में चेंज किया था, उस टैबुलर फॉर्म में, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, ठीक है, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। फिर अब देखिए, यदि यहाँ पे ऑब्जेक्ट आता है तो सेइंग मी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आता है तो सेइंग मी, एक्सक्लेम विद सरप्राइज सेइंग मी, ठीक है, नहीं आता है तो आप सिंपल लिखिए ही एक्सक्लेम विद सरप्राइज, कंजंक्शन बेटा मैंने आपको क्या बताया, दैट, कंजंक्शन क्या होगा, दैट होगा। अब देखिए आगे, हाउ फुल यू आर, इसको छोड़ेंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट का पता लगाते हैं, इसमें ये होता है ना सब्जेक्ट का, आपको हेल्पिंग वर्ब हमेशा लास्ट में मिलेगी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब से एंड होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। तो हाउ फुल यू आर, अब देखो ये आर हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब से पहले हमेशा क्या यूज करते हैं हम सिंपल सेंटेंस में, सब्जेक्ट, तो अपना सब्जेक्ट क्या है बेटा, यू, सब्जेक्ट क्या है, यू, अब यू सेकंड पर्सन है, सेम रूल वुड बी अप्लाइड, ऑब्जेक्ट को देखेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं है बेटा, तो फर्स्ट और थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग हम इसे क्या करते हैं, चेंज करते हैं, आप यहाँ पे जो चाहे लें, इफ आई टेक आई, ठीक है, यदि मैं आई लेता हूं तो ये मी होगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे मी सपोज करूं ऑब्जेक्ट में, तो ये मी जब यहाँ यू की जगह जाएगा, यू यहाँ सब्जेक्ट है, और तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा बेटा, आई, क्लियर। इज एम आर बेटा किस में चेंज होता है, ये आर है, इज एम आर किस में चेंज होगा, वोज वर्ब में होगा, आई के साथ वोज आता है बेटा, आई वॉज, ठीक है बच्चों। तो फूल, अब ये देखो हाउ फूल बचा है, हाउ को हटाना है बेटा, आई वॉज हाउ की जगह क्या लगाना है, ग्रेट, क्या लगाना है, ग्रेट, क्योंकि ये किसकी बात कर रहा है, लिविंग की बात कर रहा है, यू तुम, ठीक है, तो ये लिविंग थिंग की बात कर रहा है, तो लिविंग के लिए मैंने बताया था, लिविंग के लिए आपको क्या करना है, ग्रेट यूज करना है, किसके लिए, लिविंग के लिए ग्रेट यूज करना है, और नॉन लिविंग के लिए वेरी यूज करना है, ये हो जाएगा आई वॉज अ ग्रेट, बचा क्या है बेटा, फूल, आई वॉज अ ग्रेट फूल, इस प्रकार से आपको चेंज करना है, ये तो हो गई लिविंग की बात। अभी यदि मैं बात करूं किसकी, नॉन लिविंग की, तो उस केस में आपको कैसे सेंटेंस बनाना है, देखिए, if I say Shivani said what a beautiful picture is, picture this is, ये देखिए सेंटेंस, व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर दिस इज, मैंने कहा था हेल्पिंग वर्ब से एंड होगा, ठीक है बेटा, नहीं है तो आपको वहां पे इज एम आर जो भी है वो मानना पड़ेगा। तो देखिए व्हाट ऐसे शुरू हो रहा है, फिर एडजेक्टिव आ रही है और हेल्पिंग वर्ब से एंड हो रहा है, तो इसको आंसर करेंगे लाइक शिवानी का शिवानी रहेगा बेटा, साइड किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन क्या है, व्हाट की जगह पे मैंने आपको बताया था एक्सक्लेम, ठीक है, एक्सक्लेम विद सरप्राइज, एक्सक्लेम विद सरप्राइज, बेटा कंजंक्शन क्या लगेगा, दैट, ठीक है। अब देखिए सब्जेक्ट ढूंढे, इसमें क्या है बेटा, इज हेल्पिंग वर्ब है, तो सब्जेक्ट क्या होगा, दिस होगा, ठीक है। तो देखिए दिस किस में चेंज हो जाता है, दैट में, देखो कई जगह आपको ये मिलेगा, दिस इंडिकेट करते हैं करंट थिंग के लिए, जिसको हम इंडिकेट करके बताते हैं वो चेंज नहीं होता, लेकिन आप चेंज करेंगे दैट, ये दैट आया कंजंक्शन के लिए, ये दैट किसके लिए आया बेटा, कंजंक्शन के लिए, और ये दैट हमने सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है, इसलिए दैट, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दैट आ गया, नो इशू। तो दैट इज एम आर किस में चेंज होगा बच्चों, वॉज में, दैट वॉज। उसके बाद देखिए व्हाट आया है, व्हाट को किस में चेंज करेंगे, ग्रेट में चेंज करेंगे या वेरी में, तो ग्रेट और वेरी का कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम ये देखना बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बेटा पिक्चर की, और पिक्चर क्या होती है, नॉन लिविंग होती है, तो नॉन लिविंग के लिए हमें क्या यूज करना है बेटा, वेरी, तो दैट वॉज अ वेरी, व्हाट को हटा दिया तो बच गया क्या, अ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर, अ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर, क्लियर हुआ इस प्रकार से। बाकी जो नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, इसकी प्रैक्टिस सेट आप करें और कंफ्यूजन क्लियर होते जाएंगे। थैंक यू।